All right, time is 7 o'clock. So, as usual, let us start on time. And ma'am is already with us. Once again, I welcome all of you in the day two session of our SLR workshop. And I request ma'am to kindly please take over the session. Thank you, ma'am. A very good evening to one and all present here. Can you hear me? आवाज सुनाई दे रही है सर मेरी? हेलो सर, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. अच्छा, okay, right. So let me start with this now today. So let me have a recap of what we did yesterday first. So we are talking about the systematic literature review. This is the topic. Let me increase the font size. Okay. So what we have done yesterday was we have talked about the Scopus database. We have talked about how do we extract the data from the Scopus database. So this is one thing that we did yesterday with the help of the keyword search. So before this, whenever you are doing a SLR, you need to define the objective. Oh, I think my screen is not visible. Let me, I think I forgot to share my screen. Let me share my screen. I was writing on it, but I forgot to share this. Yes. So systematic literature review. So I was discussing about what we did yesterday in a brief overview. So we talked about the Scopus database yesterday. How did we extract the data from the Scopus database? For this, we need a keyword search. This has to be very, very clear. We should be very, very clear with the keyword search, right? So for the keyword search, we need to define the objective first, right? So सबसे first, what is the first task when we are talking about the systematic literature review is we need to define the objective first. So what will be the area? What will be the area that we are interested in? Right. Once we have decided the area, then we go for the keywords, and we should know the many keywords. मतलब जितने भी आपको keywords जरूरत है उस topic से related. So the keywords that is important, and then we put these keywords into the Scopus database, and we extract that data from the Scopus database as such, right? So I told you yesterday. So this is a paid version. Scopus and Web of Science is a paid version. This is a paid version. If your college or institution has subscribed for it, then only you can go for it, right? It's a paid version, Scopus database and Web of Science. So that is a paid version, right? And if it is only then you can have an access to it. So let me just give you an overview of that, what we did. So this is the Scopus database. This is a Scopus database. Here we have to put the keywords, let's say impact investing again, right? Or impact investment. So I'm just talking a very simple one so that we can do it a little faster way. So like this, we come across this much of the documents. Then we can narrow down our research with the help of putting these things. Like let's put it here this much. Then we limit our to articles only, right? And English language, let's say, right? So we have narrowed down this research to
what is the total number of documents that we have got is 582 documents. So we can select all of them and we can export the data in the CSV file. So this is how you export the data into the CSV file, and this CSV file, when it comes, you can click the command option, export over here, and let's say this is the CSV file that we have got. ये हम वही देखेंगे जो हमने कल करी थी. So this is the one that we got yesterday, right? And this is very, 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 very informative. This Scopus database file is very informative, and we get the records at one place. We get all the information about the papers that we have extracted at one place, at least the abstract and the other information. I know there is not the full paper, but the abstract and the other information that is very much required. So that is what we got with the help of the Scopus database. And this file, believe me to this is very, very important file, right? And the next thing that we can do, the research methodology section we talked about. We talked about the research methodology section yesterday, and research methodology sections में everything that we do here, अभी जो भी हमने देखा है सारा का सारा everything will become a part of the research methodology section, right? इसके अंदर there is a Prisma framework as well. Prisma framework talks about how did we get the initial number of papers in the Scopus database, and how did it remain, matlab how did we screen the records, and what are the final number for our paper, right? What are the final number? Initial number. So I'm talking about the Prisma framework. So Prisma framework talks about what is the initial number of paper that we extracted from the Scopus database, and how did we screen the records, and what is the final number of our paper that we have used for. So that is included into the Prisma framework, right? So actually, let me tell you one thing. Basically, जो ये diagrams हैं, these diagrams helps to make your paper more visible to the editor and to the reviewer. So that is the basic purpose, right? So, you know, when you have made a diagram and you have put like, this was the initial number and how you screened about, what are the inclusion or the exclusion criteria. So इसमें next important aspect है research methodology में exclusion and inclusion criteria, right? So this is in depth of everything. So this is the research methodology part. ये हमने कल बहुत अच्छे से किया था, and that is called as our research methodology section, right? So let's move. Before this, let me tell you another thing, that is introduction. मैं अब आपको I will also tell you how to write the introduction section. It has to be very wide. मतलब काफी अच्छे से इसको लिखना होता है, तभी you will get more, मतलब आपके chances हैं for the acceptability of this paper into a very good journal, right? So introduction, how do you write about the introduction? So let me tell you this. What are the things that is included in here? Introduction में, let's say we are talking about impact investing. So brief about impact investing, that is the one thing that you will be writing. Impact investing and how it is doing in our own country. So say we are in India. So India में इसका क्या trends हैं? What is the scope of this? What is the trend of this impact investing within India? And next is, what is the trend of this topic in the world? World scenario में how it is being treated as this topic that is called as an impact investing. Let me tell you one thing. When you are talking about the introduction, so you can also take the help of the Google Scholar. Sorry, Google. It is not mandatory that you have to extract the information from the papers itself.
आप यहाँ पर भी लेट्स से आपने यहाँ पे इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग डाला इंडिया, सो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स यू विल गेट। सो आप जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सो यहाँ पर आप यहाँ से भी डेटा उठा के, सिर्फ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, राइट, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो आप यहाँ से भी कुछ डेटा उठा के इंट्रोडक्शन का, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ से भी टॉपिक को उठा के लिख सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेट मी अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, ओके, राइट। तो आप यहाँ पर इनटेक साइटेशन और रेफरेंसेस आपको साइमल्टेनियसली देते रहना है। एंड कोशिश करें जब आप इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो आप व्हाट यू कैन डू इज, आपको ना गूगल स्कॉलर भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट, यहाँ से भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। सो लेट्स मूव टू द गूगल स्कॉलर, let me open this. So let's say we are putting the topic impact investing, right? So you will come across many papers over here. So you can see the first paper aaya, this is in Q1 A star. Oh wow, that's nice. अच्छा, that's great. So आप यहाँ पर, आपको कभी कभी यहाँ पर भी पूरे पूरे पेपर्स मिल जाते हैं, कैन यू सी टू दिस? सो आप इसको भी ओपन कर सकते हो, ठीक है, एंड देख सकते हो इसके अंदर what exactly the paper is all about. Okay, and यहाँ पे भी आपको पूरे पूरे पेपर्स मिल जाते हैं क्योंकि ऑथर्स ने अपने पेपर्स को डाला होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना जा रही थी कि आप क्या कर सकते हो कि सो लेट्स से ये तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाती है, काफी पेपर्स की पीडीएफ आपको बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जो लेटेस्ट पेपर्स हैं उनको आप साइट करिए। तो जैसे ये यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ साइट, बहुत सारे साइटेशंस के तरीके हैं। सो हमने एपीए, नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी यूजुअली टेक द एपीए स्टाइल। सो आपने यहाँ पर साथ के साथ रेफरेंसेस ऑफ कोर्स सबसे नीचे जाता है, साथ के साथ अपने रेफरेंसेस लिखने हैं और साथ ही साथ आपने इसको इंटेक्स साइटेशन बार्बर एट ऑल 2024, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ उठाया है यहाँ से, सो बार्बर एट ऑल 2021, सो ये आपने साथ के साथ फाइट कर देना। और कोशिश करें जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई टू साइट, जैसे अब 2025 चल रहा है, सो कोशिश करें 2021 20 से 2021 तक के पेपर्स को ही साइट करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ पेपर्स आप पुराने भी कर सकते हो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको सारे ही नए पेपर साइट करने, बट आप ये लगा के चलिए कि अगर आपको हाफ पेपर्स, राइट, 50 to 60% ऑफ द पेपर्स जब भी आप साइट करते हैं पूरे अपने थ्रू आउट द पेपर, दैट शुड बी द इंटेक्स साइटेशन शुड बी फ्रॉम दिस मच ईयर, एंड बाकी 40% जो इंटेक्स साइटेशन है वो आप पुरानी भी उठा सकते हो, राइट। सो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर राइटिंग अ पेपर ऑफ योर्स। ये आपको इवन आप क्वांटिटेटिव पेपर भी अगर आप लिख रहे हो, राइट, और उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी लिख रहे हो सेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर काइंड ऑफ पेपर, मैं अब आपको नॉर्मल पेपर की बात कर रही हूँ, क्वांटिटेटिव पेपर, नॉर्मल पेपर ये एसएलआर पेपर है, बट मैं आपको क्वांटिटेटिव पेपर की भी बात कर रही हूँ। तो जब आप इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं उसमें भी, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, वहां पर भी जो आपकी इनटेक्स साइटेशंस हैं, सो कोशिश करिए मैक्सिमम लेटेस्ट ईयर्स की हो, latest years 60% should be of the latest years, 40% you can use the old ones, so but आपकी latest citations भी होनी चाहिए। So let's move to the introduction section of this. So let me take you to my paper again on the impact investing. Let me open that paper.
Okay. So what all comes in the introduction section? That is what we are doing. आपको यहाँ पे एक और चीज बहुत important है जो आपको बतानी होती है. That is, let me put it here. So I'm talking about how to write the introduction part, right? So उसके बाद what is important here is to write the research gap. So this is also very, very important, how your paper is different from the other papers. So this is another topic that you have to put, which is mandatory, right? And then the research objectives. Normally, आजकल क्या होता है, introduction के last में you write the research objectives. So just have a look at this paper of mine. So you can see from here. So this is what the things are. So what the things are. 1 minute. Just give me a minute. Okay. So you can see over here. So these are the 4 research questions. Can you see? I want you to read it. This is the introduction part of my study, and we have written the research questions over here. So normally research questions for the SLR more or less remains the same, right? So I want everybody to read it, please. And this is in the introduction. Introduction section में you do write the objective, research objective, right? So this is how we go for the introduction part. I hope it is clear to all. सबको clear है यहाँ तक? Any queries, any questions till now? किसी को कोई question पूछना है? Okay. Hello, ma'am. I have a question. Yes, Aditi. Yes, you mentioned that in the introduction we should show the trend of the topic. आपकी आवाज नहीं आ रही है. क्या कह रहे हो? Am I audible? Hello. Ma'am, am I audible now? Yes. Ma'am, I'm asking that you mentioned that in the introduction part we should show the trend how our topic is doing in India as well as in the world. If it is there, if it is not there, you cannot write it. No study. No, it is. If it is there, beta. If it is there, you can write it. If it is not there, how can you write it? If there is no if the topic, study, can we write this that there is no study in India? Can we mention that line? Yes, you can mention that in your line. Huh? In our manuscript, that can we mention that line in our manuscript that there's no empirical study in India till date? That we can mention. No empirical study has been done. आपको लगता है no empirical study हुआ होगा? Did I say that? No, ma'am. I'm saying that if there, in case there's no empirical study on my topic from India, but so don't write this. There are limited studies that has been done in India with respect to this topic. और आपको लगता है कुछ topics आपने mention करने, that also you can mention it over there. Can we directly cite like you say? आपकी आवाज कम आ रही है Aditi. I cannot hear you much. Now, am I audible? Yes, better. I'm asking that if can we quote some cite some reports like World Bank report or any RBI report. RBI report में आपको ये मिलेगा, empirical study नहीं हुई. RBI report में Aditi. Not empirical. Data. नहीं, but this is क्या data? डेटा तो प्राइमरी, आप कौन से डेटा, नहीं आप किस चीज को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा ना. आई थिंक यू योरसेल्फ इज नॉट क्लियर व्हाट यू वांट टू आस्क. आप ये बोल रहे हैं you wrote impact investing on the Google and then you got some few things and you said that you can write recent news and something like that. So I'm asking that हाँ, तो आपको उसमें मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन सेक्शन में जब आपको लिखना होता है, सो इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप क्या लिखते हो बेसिकली? what I'm trying to tell you, I'm trying to tell you, listen to me. If you have got some data, right, आपको कुछ क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है तो आप लिख दीजिए, नहीं मिलता तो मत लिखिए. और इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप ये कह सकते हो कि आपको प्राइमरी जो सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस है वो अलग होते हैं, आपकी जो प्राइमरी रिसर्च होती है वो अलग होती है. आप आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो.
Okay, ma'am. Yes, ma'am. Possibly. I thought that in introduction part to make it more quantitative, shall I add some report or mention some report? हाँ Like, for बिल्कुल कर example, सकते हो, बिल्कुल yes, कर ma'am. सकते हो अदिति आप. You can do that as well. If you want, Yes. you can do anything you want to, right? हम कुछ भी कर सकते हैं, बस it should be relevant, right? It has to be more relevant to your topic. और अगर नहीं है तो आप लिखो it is not there. That's it. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Okay. Thank you, ma'am. So this is about the introduction. Then is your research objective. इसके अंदर to be very precise. So when we talk about the SLR papers does not have review of literature. Please remember, review of literature is not there, right? There is this section, that is the first section is the introduction section. Second is the research objective section. Sorry, research methodology section. Not this, sorry. This is a part of the introduction. Research objective is the part of the introduction. Second comes the research methodology. And third part is your data analysis and interpretation. Data analysis and interpretation. So I told you the frameworks you must use, that is a TCCM framework. It is, you know, it's not that easy to use these kind of frameworks. So let me tell you, it takes lots and lots of hard work to find out, to do this TCCM framework and the ADO model both, right? So I told you the T is for theory, C is for context, C is for the country, and M is for the methodology. So TCCM framework is T is for the theory, C is for context, and C is for country, I mean, is for methodology. So we have already talked about. So how do you find this out? So you can take the help of these abstracts. अगर आपको abstracts में मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो what you need to find out is you need to extract the whole papers first. आपको सबको सबसे पहले full papers आपको extract करने हैं, full papers को extract करना है और फिर वहां से information करके you have to make the tables with respect to this, right? Next is the ADO framework. Next is the ADO framework. So I told you antecedent, decision, and outcome. Right. So this is one model that we have made into this. Let me show you this. And this is the most toughest part of any SLR paper. So that is what we made it. So this is the antecedent. You can see this topic is on impact investing. This topic is on impact investing. Antecedents means what are the factors. इसमें हमने जो लिया है वो क्या लिया है? What are the factors that is impacting the investors to invest in impact investing? मतलब ऐसे कौन कौन से factors हैं जो main factors हैं? So we have jotted down the main factors over here. ऐसे कौन कौन से main factors हैं? Financial factors, social factors, और financial, social and सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फैक्टर्स में कैटेगराइज किया है जो मोटिवेट करते हैं ह्यूमंस को टू इन्वेस्ट इनटू द इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग. वो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में क्यों करते हैं इन्वेस्ट? सो हमने इसको 3 मेन फैक्टर्स में डिवाइड किया है. फिर उसके बाद हर फैक्टर के रीजंस बताएं यहाँ पर, राइट, एंड उसका आउटकम क्या होता है. सो व्हाट इज द आउटकम विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड व्हाट आर द मेन फैक्टर्स. These are the sub factors and what is the outcome with respect to this. And you know, simultaneously we have aligned it with some theory, and this theory is called as Macklin's theory of needs. So usko bhi humne 3 stages mein divide kiya hai: need for power, need for affiliation, and self need for achievement. So these are the 3 parts of this theory, Macklin's theory. And this is your antecedent. These are the main factors that is impacting the person to invest in impact investing companies. So what are the sub decisions that they take and what is the outcome of that?
right? So this is the ADO model, and that is ADO model is related with that of the sum theory. So this is what the ADO model is. Yesterday, acha, SL Gupta sir was asking me, how do we get this model? Sir, I told you yesterday as well. So what exactly do we do is, हम इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, हम इसमें ना फैक्ट वेरिएबल्स ढूंढना शुरू करते हैं. सो आई टोल्ड यू, जो पेपर था सेकंड हैंड फैशन का, हमने एक पेपर पे काम किया एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेकंड हैंड फैशन. तो उसमें वी वर 3 फीमेल्स, वी स्टार्टेड विद दैट पेपर एंड व्हाट वी डिड वाज लाइक, सो वी डिवाइडेड द नंबर ऑफ पेपर्स, लाइक अगर 100 पेपर्स हैं तो हमने 30+ पेपर्स सबने डिवाइड कर लिए, राइट. उसके बाद व्हाट वी ट्राई टू डू वाज, हमने इसमें से वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना शुरू किया. तो जैसे जैसे, और हमने इसको गूगल शीट पे किया, राइट. गूगल शीट हम सब एक देख सकते हैं. सो वहां पर जब हमने किया गूगल शीट में, सो येस्टरडे आई वाज शोइंग यू दैट एज वेल, लेट मी शो यू दैट एज वेल. Let me share that Google sheet of mine. This is the one. This is the model, right? So what we have done, ये तो अभी बहुत clean है, right? लेकिन हमने क्या किया, जो भी वेरिएबल्स हमें समझ आते रहे, कि जो भी वेरिएबल्स हैं जो हमें समझ में आते रहे, तो हमने उसको इस तरह से लिख लिया, राइट. सो वी स्टार्टेड राइटिंग इट ओवर हियर एंड then the decisions part and then the outcomes of it and then the paper number. So one day what we have done was we all sat together and we finalized. इसमें से कुछ ऐसे भी थे जो यूजलेस थे, सो हमने उसको डिलीट किया, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे हमने उसको लिख दिया. सो दिस इज हाउ we made the ADO model again. फिर उसके बाद ये सिर्फ मॉडल ही नहीं बनाया, this is the model that we have made, but at the same time we define that as well, all the things in the coming parts like this. Antecedents, फिर हमने एक फिर टेबल बनाया कि antecedents हमारे ये हैं, उसके की रेफरेंसेस और की फाइंडिंग्स क्या है, राइट. सो बहुत इलेबोरेट करके हमने इस पेपर पे बहुत, मतलब ये वाला जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग वाला पेपर था, यू वॉन्ट बिलीव, इस पेपर को 2-3 साल लगे हमें टू गेट इट पब्लिश्ड एंड बहुत मेहनत करी है, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि कितनी मेहनत इसके ऊपर हमने की होगी. सो दिस इज द फाइनेंशियल फैक्टर्स. सो डिसीजंस भी लिखे, फिर की रेफरेंसेस एंड की फाइंडिंग्स वी डिड राइट इट, right. And we look at this, every paragraph is about each and every variable that we have selected, right. So these are the outcomes. Look at this. Then comes the discussion, right. So what is the discussion segment all about? Discussion segment, next section is the fourth section, is the discussion section. Yes. So discussion section mein we give a brief overview of what we did in data analysis part. This is what the discussion part is. Next, we did the implications, and that is called as a theoretical implication and practical implication, right. So I'll show you what we have done over here in this. This is a very elaborated paper that we have talked about. So just have a look at this. This is the theoretical implication. We made the table, we made the diagram as well. So so इसमें हमने बहुत मेहनत करी. जो एक पर्सन था विकास आर्य, ही टोल्ड अस कि इसमें नई थ्योरी से भी इसको कोरिलेट करो. सो हमने यहाँ पे इसको नई थ्योरी से भी कोरिलेट किया, राइट. दिस इज द एडवांसिंग द थ्योरी ऑफ चेंज से भी हमने इसको कोरिलेट किया. मैनेजरल इम्प्लीकेशंस फिर हमने लिखी. सो इट वाज अगेन वेरी वेरी इलेबोरेटेड. यू कैन सी फ्रॉम हियर कि पूरे इसको टेबल बनाया और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, राइट. सो वी एक्सप्लेन दिस वेरी वेल. एंड उसके बाद फ्यूचर डायरेक्शन फॉर रिसर्च वी डिड दैट.
and then the conclusion. So this is how we write a paper on SLR, the way I write it, right? So I hope it is clear. Any questions or queries? Any question or queries? Is it clear? Yes. Ma'am, can you elaborate more about Prisma framework? Prisma framework. Yes. What is not clear in that? Please ask. Ma'am, we have just touched upon that in Prisma framework, we decide about what paper we have included and on what basis we have excluded. This is all about Prisma framework, if I'm not missed on anything. Yes, most of it yes. आप ये देखो ना, आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आए पहले 814, उसके बाद आपने किस बेसिस पे स्क्रीनिंग करी है ना, तो ये जो साइड पे आपका निकलते हैं ये सारी चीजें, आपने क्या इंक्लूजन किया क्या एक्सक्लूजन किया वो आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो किया था, इसमें एक क्राइटेरिया और लगा दिया था कि जो पेपर्स एबीडीसी और स्कोपस में हैं सिर्फ उन्हीं को रखा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पेपर्स आ गए उनको हमने फिर से क्वालिटी सर्च किया, मतलब हमने खुद से रीड किए सारे पेपर्स को, एंड इन द एंड हाउ मच पेपर्स डू वी गेट. So this is how we go for the Prisma framework. Is it clear? And ma'am, one more thing, while discussing about the ADO model, Yes. we linked it with the theory. So is it mandatory when we are discussing the ADO model, we have to link it with any theory? But actually what I always believe is कि अगर आप करोगे तो it is better, नहीं भी करोगे चलेगा, बट यू नो जब भी आप, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी आप एक इवन क्वांटिटेटिव पेपर को ही करते हो है ना, तो उसमें हमेशा बोलते हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होना जरूरी है, कोई थियोरी से आपको कोरिलेट करना जरूरी है. सो इसमें भी अगर आप इसको थियोरी से कोरिलेट करोगे सो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और ज्यादा इफेक्टिव होगा आपका पेपर, एंड एडिटर भी इसको प्रेफर करेगा. सो दैट इज व्हाई वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सम थियोरी एज वेल. जैसे मैंने EST का पेपर लिखा था है ना, so let me give you that example as well. So I have written a paper on EST, ये भी SLR पेपर था मेरा. So इसके अंदर मैंने SDGs से कोरिलेट किया था इसको, जैसे SDGs से कोरिलेट कर दिया. तो आपको देखना है ये आपको किससे कोरिलेट करना है. लेट मी सी, अगर मेरे को इजीली मिल गया वो पेपर तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको. लेट मी शो यू दैट पेपर एज वेल. एक्चुअली मुझे ना आपको बहुत टाइम आई थिंक कम है, मेरे को ना आपको कुछ और भी वो भी बताना है. अच्छा मैं फटाफट से दिखा देती हूँ इसको. We can skip that, ma'am. That's okay. अच्छा, Keeping in mind the topics you have to cover, so in that case. हाँ, bibliometric भी because I have to cover, so that is what I was thinking. That's fine, ma'am. अच्छा ठीक है, ओके. सो आप इसको SDG से कनेक्ट कर दिया जैसे है ना, इस फ्रेमवर्क को. जैसे यहाँ पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, जैसे ये मॉडल है ना, इसमें थियरी ना लिखे हमने क्या किया, ऐसे हमारे ESG फैक्टर्स थे, यहाँ पे हमने इसको SDGs की, इस वाले SDGs एनवायरमेंट के जब है तो कौन से SDGs कवर हो रहे हैं, फिर कौन से इंस्टेड ऑफ दिस. सो ये आप पे डिपेंड करता है अपने पेपर को किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, राइट. सो अच्छा, लेट मी शो यू वन मोर पेपर ऑफ, अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ. इसमें MNIT सतीश कुमार, उसका ADO मॉडल उन्होंने थोड़ा सा इसको डिफरेंटली किया है. सो लेट मी टेक यू टू हियर दिस मॉडल. लेट मी रोटेट इट. दिस इज व्हाट ही हैज डन. इसका टॉपिक है दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग ADO. सो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनका टॉपिक. सो इन्होंने एंटीसीडेंट, यू कैन सी फ्रॉम हियर, आर यू एबल टू सी दिस, सारे फैक्टर्स जो भी होते हैं सारे लिए इन्होंने, दैट इज डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक, पर्सनालिटी ट्रेट, सोशल, बिल्कुल एक एक फैक्टर, हर पेपर का एक एक फैक्टर उठाया इन्होंने, राइट. और मीडिएटर्स और मॉडरेटर्स को इन्होंने डिसीजंस बताया है, एंड आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बताए हैं. लेट मी रिपीट दिस अगेन. इन्होंने ADO मॉडल को किस तरह से प्रेजेंट किया है, लाइक जितने भी फैक्टर्स हैं पुराने पेपर्स में, सो ही हैज टेकन दैट एज एंटीसीडेंट, ऑल ऑफ देम, उसको भी फिर फर्दर डिवाइड कर दिया जैसे डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक, राइट.
फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल, पर्सनल ट्रेट्स, सोशल, व्हाटएवर। फिर मेडिएटर्स और मॉडरेटर्स को इसने डिसीजंस लिए और टोटल आउटकम्स को कि इसके क्या आउटकम्स होंगे पेपर्स के अकॉर्डिंग, है ना, जो प्रीवियस पेपर्स हैं। सो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ये। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द ADO मॉडल. So it depends on you. Again, let me tell you one thing, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो. That depends on you, how you want to present it your paper. I hope it is clear to all. I'll share this paper to you as well. Anything else? Any questions? Okay, I think so. Let's move to the bibliometric analysis now. So if you do not have a question, so let's move to that part. So the next topic is the bibliometric analysis. Right. So let me tell you one thing. जैसे हमने SLR किया, so SLR में we have to work very hard, right? मतलब जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, वो आपको सबको मैन्युअली ही बनानी पड़ती हैं. बट अगर आप बिब्लियोमेट्रिक करते हो, सो बिब्लियोमेट्रिक में आपको फिगर्स और टेबल्स नहीं बनाने पड़ते. वो एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके थ्रू आ जाते हैं. सो एक सॉफ्टवेयर है वॉस्फियर और एक होता है आपका आर स्टूडियो. नॉर्मली ये बहुत पावरफुल है. That RStudio is much powerful than your WOSWare. आप WOSWare को इतना यूज नहीं करते. आप RStudio के जितने सुंदर डायग्राम्स और अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप RStudio से ही कर सकते हो, राइट? सो दिस इज अ पावरफुल टूल. सो इसमें सिर्फ आपको एनालिसिस करना पड़ता है. सो लेट मी शो यू वन पेपर ऑफ माइन ऑन टू दिस. ये मेरा भी रिसेंटली ही पब्लिश हुआ है. सो लेट मी टेक यू दिस. आई विल शेयर दिस पेपर ऑफ सतीश कुमार एज वेल विद यू ऑल. Let me ये रहा. I'm just अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, राइट? फिर इन डेप्थ हम इसमें करेंगे. So what I'm trying to tell you here is like इसमें ये जैसे डायग्राम है. So that diagram has been made by the software. You just have to write about it. So just have a look at this. So there are many diagrams. You will see more and more diagrams over here. But you know, so all these diagrams is being made by the software. ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया, हमें सिर्फ इसका एनालिसिस करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज bibliometric analysis. So bibliometric analysis, writing papers with bibliometric analysis is comparatively easy. So this is what I can say, and WOSWare as well. So let's start with it. उसके लिए सबसे पहले आपको you have to download our software. After that, once you have completed downloading this R software, only then you can download the RStudio software, right? Don't be in a rush. सबसे पहले आपको R software को डाउनलोड करना है. Only then, एक बार जब ये R software हो जाएगा, तभी आप RStudio को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है आपने, right? So let me take you. Just give me a minute. This is the thing. So let me share this. This is my PPT. I'll show you the links for this. This is installing R. जब आपको R software को install करना है, so this is the command that you have to put into the Google. Google में आपने इसको put करना है. उसके बाद Google में once you have installed this software,
दैट इज आर सॉफ्टवेयर यू हैव इंस्टॉल्ड, देन आपको आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसके लिए आपको क्या कमांड देनी है गूगल पे rstudio.com, राइट. देन दिस विंडोज विल कम. So there are R Studio में you do not need to understand this software for doing the bibliometric analysis, right? You just need to know the 3 commands. So what are the 3 commands? So these are the 3 commands. Let me show it to you. Let me copy these 3 commands into the Word file. These are the 3 commands. I will share the document again with all of you. So these are the 3 commands. R Studio में जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास ये विंडो खुलेगी एंड देन यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दीज 3 कमांड्स into here, right? Can everybody see to it? And then you have to use this button called as run. ये बटन रन दबाना आपने, राइट? तो आपके पास एक नई विंडो खुलेगी. This is the window that will open up, right? फिर उसके अंदर आपने क्या करना है, this is the website. This is an online software. Please understand, this is an online software जिस पे काम करते हो. तो इसके अंदर अगर आप नहीं काम कर पा रहे हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? सो यहाँ से आपने इंपोर्ट और लोड करना है. इंपोर्ट रॉ फाइल क्लिक करनी है एंड देन स्कोपस, एंड यहाँ से ब्राउज करना है और स्टार्ट करना है. तो इस तरह से आपके पास ये विंडो आ जाएगी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैन यू सी टू इट? Is it clear to everyone? Please raise your hands if it is clear. Ma'am, can you repeat it once? Yes, I'll do that. Look at this. This is the window. This is R Studio. ये R Studio एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इस पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है दैट इज कॉल्ड एज अ बिब्लियोशाइनी. ये ऑनलाइन चलता है. सो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 कमांड्स को पुट करना है यहाँ पर इस विंडो में. इसको सारे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक कमांड है दैट इज कॉल्ड एज अ रन. आपको इसको रन करना है यहाँ पर और आपके पास ये विंडो खुल जाएगी. सो विंडो के अंदर आपने यहाँ से डेटा और इंपोर्ट और लोड डेटा, जब ये आ जाएगा तो इधर आपके पास ये ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिखाई दे रही है, इंपोर्ट रॉ फाइल, फिर यहाँ से डेटाबेस, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस. तो आपने ये स्कोपस करना है, ठीक है? और यहाँ से ब्राउज करना है. तो यहाँ से ये आ जाएगी फाइल और ये स्टार्ट कर देना यहाँ पे. तो अब आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी. इज दैट क्लियर? उसके बाद यू विल स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट्स. मतलब इसके बाद आपने टेबल्स और फिगर्स यहाँ से जनरेट करनी है. सो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आएगा मेन इंफॉर्मेशन. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. अगर आप इस पे मेन इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक तो प्लॉट वाइज इस तरह से दिखाएगा और या फिर आपको इस तरीके से ये दिखाएगा इन द टेबल फॉर्म. कैन यू सी टू इट? सो आपने यहाँ पे एक्सेल करना है. सो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड ये फाइल खुल जाएगी एंड दिस इज योर फर्स्ट फाइल और द टेबल दैट you will be putting into your paper. So let me open that as well. इसमें मेरा एक पेपर भी है. This is another paper. This is another Journal of Business Research में पेपर पब्लिश हुआ है. ये एक अच्छा पेपर है. Let me show you another paper. The one that mine got published इसमें psychology and marketing. No, एक मिनट, नहीं, this is not my paper. एक मिनट just. This is the one. Okay, this is from the research methodology section. Yeah, this is my paper.
So what is the first table that we got here is, अच्छा ये नहीं है, एक मिनट, लेट मी ओपन माय पेपर फर्स्ट. इसको भी दिखा सकते हैं हम, चारू वाला, ये वाला. So let me take you to the first table that we got from here. Look at this. This is the main information. So सबसे पहला टेबल आप यही बनाते हो, ये वाला टेबल. ये जो अभी टेबल मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो था, this is the table. So this is the first table that you always put into the bibliometric paper. So here हमने इसको इस तरह से रो में डिवाइड कर दिया, तो फिर यहाँ पर ये सारा लिखा है. So this is the first table when you go for a bibliometric analysis. What is that? Basically talks about the data, कि टाइम स्पेन कहाँ से कहाँ तक का डेटा लिए, सोर्स जर्नल बुक्स 52, डॉक्यूमेंट 68. मतलब ये पूरा का पूरा जो ये स्कोपस डेटाबेस है आपका, नॉट दिस वन, बल्कि लेट मी शो यू दिस. कितना कुछ खुला हुआ है. लेट मी क्लोज डाउन, सो मेनी थिंग्स दैट हैज बीन ओपनड अप. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये जो स्कोपस की फाइल है, दिस इज द स्कोपस डेटाबेस फाइल. इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, राइट? So this is the first table that we got over here, right? So this is the first table that we got it with the help of the BiblioShiny. BiblioShiny का सबसे पहला टेबल ये होता है और आपको भी यही बनाना होता है. Next is the annual scientific production. हर साल कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं from 2015 to 2025. So इसको अब अगर आप टेबल फॉर्म में देखना चाहोगे तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, हर इसको भी यहाँ पर 10 रोज है, आप 25 रोज कर सकते हो तो पूरी आ जाएंगी. और इसको एक्सेल फॉर्म में आप डाउनलोड करोगे तो इट विल कम इनटू द सीन. एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पास बहुत सारे टेबल्स और ग्राफ्स जनरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ BiblioShiny, राइट? सो ये आपको देखना है कि आपको कौन से ग्राफ इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे ग्राफ, अब जैसे ईयर वाइज है, ठीक है, एवरेज साइटेशन पर ईयर है. सो दिस सीम्स टू बी, आपको ये भी लेना है, आपको ये किसी के साथ मर्ज करना है या कैसे करना है ना? सो वो आपको देखना है, क्योंकि अगर आप ये सारे सिंपल से ग्राफ्स और टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसमें पेपर में डालोगे तो मतलब रिव्यूअर को भी मजा नहीं आएगा, एडिटर को भी नहीं मजा आएगा. सो ही वांट समथिंग मोर. सो मोर के लिए आपको कुछ टेबल्स को मर्ज करके उस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि आपका जो टेबल्स वगैरह हैं वो अच्छे दिखें, राइट? सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रॉ टेबल्स ये वाले सारे उठा के ना डालो तो दैट इज बेटर. सो नेक्स्ट इज 3 फील्ड प्लॉट. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है 3 फील्ड प्लॉट. सो लेट मी टेक यू ओवर हियर. सो यहाँ पर ये 3 लाइंस हैं, आपको दिखाई दे रही है. सो आप इसके अंदर अगर क्लिक करो तो आप क्या क्या चाहते हो, जैसे कीवर्ड्स, आई डोंट वांट द रेफरेंस, बहुत बेकार हो जाता है. सो आई हैव पुट, मुझे 3 फील्ड प्लॉट चाहिए. किन 3 थिंग्स के साथ? ऑथर्स के नेम्स हो, कंट्रीज और कीवर्ड्स हो, ठीक है. सो मैंने इसको चेंज कर दिया, ये कुछ और थे अभी. सो आई हैव चेंज दिस टू दिस एंड क्लिक ऑन द प्ले बटन, रन द एनालिसिस. So can you see to this? So this is the graph that has come over here. So this is a very beautiful graph that talks about the 3 things. What are the 3 things that it talks about is, this is the author's country, ये author की country है, ये author के name है और यहाँ पर ये keywords हैं, ठीक है. तो अब आप इसको लिखते कैसे हो? So let me take you to that as well. I don't, एक मिनट, लेट मी टेक यू टू माई फाइल एज वेल. ये फाइनल है, इसमें होगा. दिस इज द 3 फील्ड प्लॉट, राइट? कर्व ये है.
ये मेरे पुराने पेपर का है, दैट इज कॉल्ड एज अ 3 field प्लॉट, जो पेपर पब्लिश हो चुका है ओमनी चैनल रिटेलिंग पे। आई हैव रिटन ऑन टू दिस, सो लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज सो दैट यू कैन सी इट बिकम्स मोर विजिबल टू यू। सो लुक एट दिस। तो इसमें भी 3 आपको लेने पड़ते हैं। दिस इज अ 3 field प्लॉट। 3 field प्लॉट मतलब इसमें आपने 3 थिंग्स को लेके कनेक्ट करने की कोशिश करी है, राइट। सो एक है कंट्री, ऑथर की कंट्री, एक है दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल्स एंड दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल एंड दिस इज द कीवर्ड्स, राइट। तो अब आपने इसको एनालिसिस कैसे करना है? इसको एनालिसिस हम ऐसे करते हैं। सो हमने देखना है कि सबसे बड़ा जो है रेक्टेंगल वो कहाँ पर है। सो वन बाय वन वी हैव टू स्टार्ट विद इट। सो लेट्स से विद द ऑथर्स कंट्री वी स्टार्ट विद इट एंड वी हैव टू सी which block is the which rectangle is the largest. So we can see from here that China is the largest and after that comes the USA. Can you see to this? So यहाँ पर जब आप mention करोगे इसमें, तो अब आप कैसे करोगे? आप ये देखो, इसमें लिखा है मैंने, the greater the height of the box and width of the connecting line, the more work is being done in that field. So इसमें हमने बताया the findings indicate that China has devoted greater attention to this subject, with the United States following closely behind, subsequently followed by India and United Kingdom. So आपको ये किस तरह से आपको ये बताना है? So आपको ये बताना है कि आपने 3 एरियाज को एक्सप्लोर किए हैं with the help of the keyword that is omni channel retailing. ये पेपर जो मैंने ये मेरा दूसरा पेपर है, राइट। तो उसके अंदर तो सबसे हर को डिफाइन करना है। हर 3 field है ना ये, तो तीनों fields को आपको डिफाइन करना है। पहले you start with author's country, then you start with the keywords, which keyword is the most important in omni channel retailing. So sales comes the first, then what comes the next and next, and then what is the journal that is the most important. So you have to talk about this, and this is how you write about the this 3 field plot. I hope it is clear to all. Please, if you have any queries, any questions till now, please ask. Ma'am, if we don't have the Scopus database, can we make an Excel and then we can upload in our studio? Can we do that? I have no idea, to be very honest. But आपको एक बात मुझे बताओ कि ये एक्सेल ना डाउनलोड मतलब बनानी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए वैसे भी। Do you think you will Okay. be able to make this Excel like this? ये जो एक्सेल है बना पाओगे आप? This is very elaborated. तो अगर आपने करना है, so try to have a this thing only यार, Scopus database और Web of Science. So this is very very important. क्योंकि आप देखो ना कितना ना इलेबोरेटेड तरीके से आप बना पाओगे इतना सारा। I know, ma'am, is but not then possible. we don't have the access. I do understand. What you can do, I told you yesterday as well. So what you can do is like आप किसी की हेल्प ले सकते हो, आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो जिनके पास स्कोपस का या वेब ऑफ साइंस का डेटाबेस अवेलेबल है। So that But becomes more then they easy should for be you. willing, and then I don't think it is ethical to take some others' help. Like, No, it is not unethical, Geeta ji. It is very ethical. It's not like this. You can ask him. And if they asking you for a charges as well, then you can pay for it. Like I told you yesterday as well, कि एक बार Correct. I was at IMS Ghaziabad. I was working at that place. So वहाँ पे भी access नहीं था papers का. So if you want to Okay. write the paper, so how will you do that? So I went to a library, MDI गुड़गांव की मैं library गई. So वहाँ पर उस time में it was from 15 to 17 की बात बता रही हूँ. So they give the access to the outsiders with the minimum fees. I paid the minimum fees. I sat there for 2-3 hours. I got extracted the papers and I came back. So Okay. that is how, yeah, definitely होता है ये, ऐसा कुछ नहीं है. So At least आपको, we can tell them to extract the Excel sheet and share with us, right? yes, this is the CSV file, not the Excel. This is CSV file. और CSV file, इसके right? अंदर और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो भी ये CSV फाइल आप डाउनलोड करते हो ना, इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं करोगे. अगर आप इसमें हल्का सा भी चेंज करके सेव बटन दबा दोगे ना, ये फाइल खराब हो जाती है.
इसमें Oh. कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस। लाइक मैंने इसमें जैसे एब्स्ट्रैक्ट को निकाल के दूसरे पे किया, तो सेव एज करके इसको एक्सेल की फाइल को बना के सेव एज करके एक्सेल फाइल सेव करके फिर सेव करना इसको एज इट इज ही रहने देना होता है। यू कैन नॉट मेक चेंज इनटू दिस फाइल। दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव। लाइक बहुत कई बार तो डेटा सारा खराब हो जाता है हमारा भी। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी टेक केयर ऑफ दिस। You will be sharing these papers ना, so that we can हाँ हाँ श्योर, आई विल डू have a दैट। look at those. यस, Yeah. आप कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से गीता जी? मैं MIT से हूँ मैम, MIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पुणे से। अच्छा, ओके। हम्म। सो MIT पुणे के पास भी स्कोपस या वेब ऑफ साइंस एक्सेस नहीं है? नहीं ना, एक्चुअली वी Symbiosis थॉट ऑफ के पास है। टेकिंग 5 years बैक एंड देन Symbiosis अभी के पास है। उसका रेट बहुत बढ़ गया है ऐसे बोल रहे हैं। डोंट नो। Symbiosis के पास है। अगर आप पुणे में हम्म हैं तो आई कैन सजेस्ट यू Symbiosis, राइट? और वहाँ पे हम्म पेपर्स का भी एक्सेस काफी है उनके पास, सो यू कैन आई थिंक टेक द हेल्प ऑफ दैट एज वेल। राइट राइट। Yeah, थैंक यू सो मच। it's okay. So let's move to the another chart. So this is for the authors, most relevant authors. So if you click onto this, you just have to run this command. So here you can see there is a diagram over here. So this is the most relevant author. इसको table में भी देखना चाहते हो, so you can get this into the table as well, right? तो ये आप either way देख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे उस पे कर सकते हो काम, राइट? इसमें सारों में करने की जरूरत नहीं होती। आई टोल्ड यू लाइक दिस, राइट? सो एफिलिएशन, प्रोडक्शन ओवर टाइम, कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर पेपर, राइट? Most cited countries, so let's see to that as well. You can see from here, so these are the most cited countries, right? And then there is important in the documents, most global cited document. Let's see to it. So this is Journal of Cleaner Production, is the most global cited document. You can see from here. इसको आप table में भी चाहते हो, so it will come into the table as well. ठीक है, ये better लग रहा है ना? Total citation per year. So this table seems to be more good. So what you can do is you can put this into Excel. Excel पे आप click करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये Excel में आ जाएगा सब कुछ. So you will get everything into the Excel, right? But ये अभी 10 ही records आए हैं, तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, so 25 rows करना चाहते हो, so you can put this and ये आपके 25 आ. Can you see to this? I'm just closing it down. So ये सब आपने अपने पेपर में जो भी इसमें से आपको अच्छा लगता है, so you can show that into your paper, right? And अच्छा, एक होता है मोस्ट ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट और एक होता है मोस्ट लोकल साइटेड डॉक्यूमेंट्स। ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट और लोकल साइटेड डॉक्यूमेंट्स में ना ये फर्क होता है कि लाइक जैसे अगर आप गूगल स्कॉलर साइटेशन पे जाते हो, है ना? सो गूगल स्कॉलर साइटेशन पे जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स वगैरह नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो एच इंडेक्स और i10 इंडेक्स है वो ज्यादा है। अगर मैं यही चीज अगर आपको scopus.com पे लेके जाऊं, राइट, यहाँ पर अगर अपना ऑथर्स का दिखाऊं, यहाँ पर दिस इज, लेट मी ओपन दिस, लेट मी शो यू दिस थिंग, माय अकाउंट इन द स्कोपस डेटाबेस। सो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा एच इंडेक्स बहुत कम है और साइटेशंस भी कम है। Can you see to this? This is only 218 और H index is 8. तो यहाँ पर जो मेरा citations है यहाँ पर 466 हैं और H index भी ज्यादा है. So this is a local citation and this is a global citation. मतलब ये Scopus के ही जो papers हैं सिर्फ उन्हीं को लेता है ना? और इसमें सारे papers को, जैसे मेरा ये first paper है, Foreign Direct Investment in India,
ये साइटेड, ये कोई जर्नल में नहीं, मतलब जर्नल था लेकिन बहुत पुराना जर्नल था, लेकिन द पीपल हैज साइटेड इट, राइट? सो दिस इज अ लोकल साइटेड। तो ये फर्क होता है। तो नॉर्मली जब आप इसमें करेंगे तो ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट्स को ही यहाँ पर कोशिश करना, यही यूज करना। नेक्स्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कीवर्ड्स, राइट? तो यहाँ पे ऑल कीवर्ड्स लिया हुआ है, इसको कीवर्ड्स ऑथर्स कीवर्ड कर दो, ठीक है? उसके बाद यू क्लिक ऑन द कमांड रन। सो लुक एट दिस। सो टेबल फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका वर्ड क्लाउड जो बनता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव दैट। बड़ा अच्छा सा डायग्राम है, सो आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड क्लाउड। सो यू कैन पुट दिस वर्ड क्लाउड इनटू योर स्टडी। यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, एंड यू कैन पुट दिस इनटू योर पेपर। लेट मी शो यू दिस। Like this. So this is a keyword analysis. This is also very, very important. So this is one paper, this is another paper of mine जिसके अंदर keyword है। इसमें नहीं है, but keyword analysis is also very, very important, and I think you should go for it, right? So this is another keyword analysis that we must go for. So what is next over here? एक मिनट। Post citation network, this is another. इसको भी आप कर सकते हैं। This is another figure that you can make use of. This is also good. एक मिनट, मैं ना एक हाँ thematic evaluation. So this is what I'm trying to tell you over here. So this is all keywords नहीं, authors keyword यहाँ पर, and what you have to number of cutting points. So let's put it to more than one. So let's put it to 2 over here. तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। लुक एट दिस। इसने दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस कि 2015 इसने अपने आप से इसको 3 टाइम स्लाइसेस में डिवाइड किया है। मतलब हमने यहाँ पे थीमेटिक एवोल्यूशन, दिस इज गुड, कि कौन कौन से वर्ड्स ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व हुए हैं, कौन कौन से विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग था। तो आप ये देख सकते हो कि इसने अपने आप से, हमने यहाँ पे टाइम स्लाइसेस में डिवाइड किया। तो इसने 2015 टू 21, 22 टू 23, 24, 25। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो वर्ड है दैट इज कॉमन इन ऑल द 3। सो हाउ डू यू हैव टू राइट अबाउट दिस? सो लेट मी टेक यू ओवर हियर, सी इफ इट इज हियर। यस, लाइक दिस। सो अब आपको ये बताना होता है इसमें, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस डायग्राम? सो वी एक्सप्लेन दिस डायग्राम कि 14 टू 19 में कौन कौन से वर्ड्स, कीवर्ड्स को ज्यादा यूज किया गया और कौन से कीवर्ड ज्यादा यूज हुए। द वन दैट इज मतलब जिसका रेक्टेंगल बड़ा है, तो वो वाला कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ, राइट? तो एक तो ये बताना है इसमें। सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट ये बताना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो सेम रहे, सिमिलर रहे ओवर द इयर्स। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट। ओके, लेट मी आस्क यू। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है क्योंकि दिस इज ऑनलाइन क्लासेस, सो समटाइम्स आई थिंक वी शुड नीड टू डिस्कस विद यू आल्सो एज वेल। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? समझ आ रहा है सभी को? Any queries? Any queries? Any queries? All is clear to all? Everything I should say कि it is clear to all, right?
And we have to take these tables or diagrams and then we have to give explanation at the bottom Yes. of whatever we are using the parameters. Yes. Look at this. That's it. Okay, Okay. yeah. Please read this if you want. Everybody of you, please read this. Let me decrease this. है ना? So हाँ, obviously, so let me tell you one thing कि अगर आप diagrams या tables या figures कुछ भी बना रहे हो, so उसकी explanation is a must. You have to take care of this. You have to take care of this. Look at this. कितनी बड़ी मैंने इसकी explanation दी है. So this is one figure, right? This is the figure that is a thematic evolution. So इसकी इतनी बड़ी मैंने इसको explain किया. So everything has to be explained. So this is the most important thing that you have to do. है ना? Look at this. Notable lack of correlation. मतलब कौन कौन से keywords हैं जो similar रहे हैं, कौन कौन से keywords हैं जो similar नहीं रहे. So इन सब चीजों को आपको explain करना है इस diagram में, right? So this is how you have to work on to this. एक दूसरा है, एक मिनट, let me thematic mapping. No? This is another thematic map. Yes, this is another diagram. So let me, ये thematic map, ये भी अच्छा एक diagram है. So इसके अंदर क्या होता है? Let me show you this. इसमें ना ये एक मिनट, मैं इसको ना आपको एक फिगर को अलग से ही लेके दिखाती हूँ. This is, let's say this is one figure. ठीक है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, है ना? अब आप इसमें ना ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं. सो दिस इज योर थीमेटिक एवोल्यूशन. सो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं. एक मोटर थीम है, निश थीम्स हैं, इमर्जिंग थीम्स हैं और ये बेसिक थीम्स हैं. इसको ना 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. एंड इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब इन सब के कुछ अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. निश थीम का अलग मीनिंग है, मोटर थीम का अलग, बेसिक थीम और इमर्जिंग थीम. सो व्हाट इज दैट? व्हाट एग्जैक्टली इट इज मीन्स? Let me take you to this. Look at this. The themes, I want you to read this. Motor themes. क्या मतलब होता है इस motor theme का? The theme that is situated in the upper right quadrant, which exhibits higher level of centrality and density, are commonly referred to as the motor themes. They hold significant importance and has been thoroughly developed. So this is what is important. Look at this. अगर मोटर थीम्स होते हैं कोई भी तो बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं और थॉरली डेवलप्ड होते हैं, राइट? सो ये जैसे हमारा डायग्राम है मोटर थीम्स, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें जो कीवर्ड्स लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोटर थीम्स. सो इसके अंदर अब कीवर्ड कौन सा? कंज्यूमर बिहेवियर. So this word will come into the motor themes. So this is how you have to write about it. So अब आपके इसके अंदर इस वाले क्वाड्रेंट में बेसिक थीम्स, ये वाले क्वाड्रेंट में बेसिक थीम्स का क्या मतलब होता है? नाउ निश थीम्स, बेसिक थीम्स कौन से हैं हमारे? प्रॉमिसिंग थीम्स. ये देखो इनका मतलब प्रॉमिसिंग थीम्स, इनका क्या मतलब होता है? They deem significant but underdeveloped and therefore possesses the probability to evolve into the motor themes in the upcoming time. So इस जितने भी quadrants हैं हमारे, जो भी ये 4 quadrants होते हैं हमारे, इसका कोई ना कोई meaning होता है, right? All the quadrants they have a meaning. मोटर थीम या फिर बेसिक थीम, इमर्जिंग थीम. तो इसी तरह से यू हैव टू राइट अबाउट इट. सबसे पहले आप ये डिफाइन कर सकते हो कि ये जो थीम्स हैं इनका क्या मतलब होता है. फिर हम ये भी दिखा सकते हैं इसमें कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं
वो इंक्लूड होते हैं इस हर क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इंक्लूड हुए हैं। बेसिक थीम में कौन कौन से, वेब रूमिंग, मल्टी चैनल, ई कॉमर्स, ये सारे आपको डिफाइन करने हैं यहाँ पर। यू हैव टू डिफाइन दिस, लुक एट दिस, हर उसको डिफाइन किया हुआ है। कैन यू सी टू दिस? इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करना है हमें। ये जितने भी हैं ये बेसिक थीम्स और प्रॉमिसिंग थीम्स हैं, तो they are very important but underdeveloped and therefore hold the possibility to transit into a motor themes in the coming future. So like this you have to explain this, you have to explain this, right? So this is also very important diagram that is called as a thematic mapping. I hope it is clear to all. यहाँ तक सबको समझ में आया? Please raise your hand if it is clear. Okay. Okay, nice. इसमें ना ये दिस इज विद द हेल्प ऑफ वॉस्फियर। ये जो बनाया है हमने ये वॉस्फियर के थ्रू बनाया। आई नीड टू चेक आई हैव अ वॉस्फियर इन दिस लैपटॉप और नॉट। नो, नॉट हियर। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? एनीथिंग एल्स? इसमें कुछ और हैं डायग्राम्स। एक ये भी हो सकता है आपका वर्ल्ड मैप। इसको टेबल में भी देख सकते हो आप, टेबल फॉर्म में। लुक एट दिस कि किस किस कंट्री का किस किस के साथ कोलैबोरेशन है। तो एनालिसिस जब करना है तो आप ये टेबल डाउनलोड कर लो और यहाँ पे प्लॉट में ये दिखा सकते हो, ये मैप दिखा सकते हो और यहाँ पर ये भी दिखा सकते हो। लुक एट दिस कोलैबोरेशन। अगर आप कहीं पे भी जाओगे इसमें लिखो, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोलैबोरेशन बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, राइट? दिस इज कंट्री कोलैब। यहाँ पर भी होगा कोलैबोरेशन, सो इट विल शो this country is having a collaboration. और अगर आपको ज्यादा ही देखना है so you can write it from here, you can see from here कि किस किस कंट्री का किस किस के साथ कोलैबोरेशन। यहाँ बिब्लियो एआई मैंने नहीं यूज किया, so let's see to it. वैसे मुझे नहीं पता, I have never used this basically. This is a new tool that has come. मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज करना। दिस इज अ न्यू टूल दैट हैव कम, आई विल डेफिनेटली सर्च फॉर इट। एनीवेज कि अगर इसमें अगर आपको कोलैबोरेशन देखना है तो आप ये टेबल की हेल्प के थ्रू बता सकते हो कि इस कंट्रीज का इन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन है, राइट? सो दिस इज अनदर टेबल दैट और द फिगर दैट यू कैन शो इनटू इट। आई होप दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो आई कैन टेक द क्वेरीज। Anything? Acha, हाँ, एक minute. Before I end into this, let me tell you one thing. Before I end on to this, bibliometric analysis may be, you know, you write the paper in the same manner. Let me tell you what all is the part in the bibliometric section. First is again the introduction part. Second is the research methodology part. And research methodology is almost the same that we uses in SLR paper, right? इसमें भी आप प्रिज्मा फ्रेमवर्क को दिखा सकते हो, राइट? इसके अंदर और भी चीजें हैं जो आप दिखा सकते हो। लेट मी शो यू दिस। एक बिब्लियोमेट्रिक पेपर, ये लेट मी सी टू दिस। ये रहा, यस। Oh, sorry, excuse me. So you can see from here
इन्होंने ना, लुक एट दिस, आप ना जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन है, अगर आप उसको बहुत इलेबोरेट करते हो, सो दैट इज रियली गुड एंड गिव मोर विजिबिलिटी टू योर पेपर। तो इन्होंने इसी तरह से इसको किया, यहाँ पर सब कुछ डिफाइन किया है, असेंबलिंग, अरेंजिंग, इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेजेस दिखाई हैं इसमें, एंड सब कुछ मेंशन किया है, राइट। इसमें 3 स्टेजेस हैं, सो लेट्स सी टू इट। इसमें असेंबलिंग है फर्स्ट, कि रिसर्च क्वेश्चंस इनके क्या थे, क्या डोमेन है, सोर्स टाइप जर्नल, सोर्स क्वालिटी, स्कोपस, राइट। तो मतलब कैन यू सी टू दिस, फिर उन्होंने ये बताया कि व्हाट वर द सर्च कीवर्ड्स, कौन से डेटाबेस से उन्होंने उठाया, एंड टोटल नंबर ऑफ पेपर्स दैट दे हैव गॉट इज 4823 डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो इन्होंने उसी को प्रिज्मा फ्रेमवर्क को भी यूज किया है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, आप प्रिज्मा फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो और उसको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, अकॉर्डिंग टू, अगर आपको उसको कुछ नया बनाना है, उसमें कुछ नया देना है, सो वो भी आप उसमें कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ प्रिज्मा फ्रेमवर्क, आप इस तरह से फ्रेमवर्क को भी बना सकते हो, लाइक दिस। आप इसके अंदर और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, फिर इसी में सारा कुछ डिटेल्स में बताया हुआ ये चीज। I'll share this document again with all of you, right? And you can see and read it कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए, बहुत इलेबोरेट तरीके से इसने यहाँ पर सब कुछ बताया है, ताकि इट गिव अ विजिबिलिटी टू द एडिटर और टू द रिव्यूअर्स कि इन्होंने क्या काम किया। तभी तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस, तभी तो ये पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है। दिस इज इन विली एंड psychology and marketing. I think this is A or B category. I think A category. Look at this. This is a bibliometric paper. And कल गुप्ता सर आप बात कर रहे थे कि SLR पेपर ही की बात कर रहे थे. You just have a look at this. ये psychology and marketing में पेपर पब्लिश हुआ है. And it is only a bibliometric paper. Can you see to this? I know इसमें वेंग मार्क लिम है, सतीश कुमार भी है, but still this is only a bibliometric paper. But this bibliometric paper को इन्होंने बहुत elaborate तरीके से लिखा है. So this got published into a category journal, Psychology and Marketing. So this is a very very good journal जिसमें ये publish हुआ है. So have a look at this, right? So it all depends on how you write a paper. बहुत मैटर करता है कि किस तरह से आप अपने पेपर को लिख रहे हो, है ना। एंड उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर। सो वो सारी चीजें ध्यान रखते हुए यू सबमिट योर पेपर, राइट। सो इसके बाद प्लीज शेयर दीज पेपर्स आल्सो विद अस। मैं भोलानाथ सर को दे दूंगी एंड ही विल शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, राइट। आई डेफिनेटली अग्री, या एंड थर्ड अगेन इज द डेटा एनालिसिस, and next is your discussion section, and fifth is your implications. So like this, again you have to write, there is no review of literature part, right? ना ही SLR में होता है, ना ही bibliometric analysis में होता है, right? So introduction, research methodology. इसमें research methodology also plays a very very important role. It has to be very very elaborated, right? So ये भी बहुत important है, data analysis, discussion and implication. Of course it is important, right? So this is how you write a paper using the bibliometric analysis. And इसके लिए जो software normally use होते हैं, that is your BiblioShiny. BiblioShiny is used by R, is made by R, मतलब R software, R studio से ही ये चलता है, और एक Vosphere है, but this is more powerful. BiblioShiny is more powerful. So now I end up my session. Any questions, any queries? Any queries? Anything else? मैम बिब्लियोमेट्रिक्स वाले पेपर में जैसे प्रिज्मा फ्रेमवर्क या TCCM या ADO फ्रेमवर्क, इसमें से ये सब कुछ नहीं रहता है? नहीं, बिब्लियोमेट्रिक में नहीं, वो SLR में ही होता है सर, क्योंकि इसमें हाँ इसमें नहीं कर पाओगे ना आप सर। उसके अंदर आपको सारे एब्स्ट्रैक्ट और पेपर्स को मैं आपको एक मॉडल
बनाते हो, इसमें ये सब नहीं है। अब करना चाहो मिक्स एंड मैच तो आप कर सकते हो, बट बिब्लियोमेट्रिक अगर आप प्योर बिब्लियोमेट्रिक लिख रहे हो तो नहीं होता है ये। प्योर बिब्लियोमेट्रिक डज नॉट हैव दैट। एनीथिंग एल्स? Any other question? Hello, ma'am. Yes, Aditi. Ma'am, you showed that keyword analysis where you had 3 segments, like so that we give the command on the WAS viewer or BiblioShiny, or it is like it is on command based, or we have to do it manually, merging the 3 time slices. क्या नहीं समझ में आया? आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा दीदी। मैम मैं समझा रही हूँ, जो आपने कीवर्ड एनालिसिस किया था टाइम स्लाइसेस करके, कुछ 2014 to 19 फिर 20 से 23, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम लाइन, बट इट वाज इन टाइम स्लाइसेस। हाँ फिर तो वो आपने मैनुअली किया, मर्ज किया था, या फिर वो आप कमांड देके किया था आपने? नहीं, इसमें मैनुअली तो कुछ है ही नहीं है ना बेटा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मैनुअली इन बिब्लियोमेट्रिक। इट इज ऑल डन थ्रू अ सॉफ्टवेयर, नॉट बाय माय सेल्फ। यहाँ पर हमने कुछ कमांड्स, आपने शायद देखा नहीं, आई थिंक यू मस्ट हैव मिस्ड दैट पार्ट। आपने कुछ मिस किया शायद, है ना? सो इसमें आपने 3 फील्ड प्लॉट था, वो 3 नहीं टाइम स्लाइस वाला था। You were talking about these keywords were used in this time frame, then उसके बाद keyword कुछ वो all keywords, नो एक्चुअली क्या है कि जब आप यहाँ पर keywords को, इसमें नहीं था वो, एक मिनट मैम, अगर आप वो फिर से दिखा देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, एक बार आई कुड रिकलेक्ट। यहाँ पर ना ऑथर्स कीवर्ड डालना होता है बेसिकली आपको ना। सो वो कीवर्ड्स, बस मैंने वही चीज आपको बताई थी कि वहां पर कीवर्ड्स डाल देना। एक मिनट, कौन सा वाला था वो? एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। थीमेटिक मैप, एक मिनट। It was not thematic map or thematic evolution maybe, but there was lots of time slices were there. Yes, एक मिनट, just give me a minute. ओहो, एक मिनट, just give me a minute to this. ये वाला था ना, थीमेटिक एवोल्यूशन था वो, थीमेटिक एवोल्यूशन इट वाज। Yes, ma'am. ये रहा, यही था ना? हाँ ये था, दिस वाज द वन। यस, यहाँ पर मैंने ऑथर्स, ये ना, नो मैम, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। ये अपने आप ही हुआ था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट सुन लो, यहाँ पर ये ऑथर्स कीवर्ड लेते हैं, है ना? क्योंकि ना जब आप, We can't see your screen, ma'am. एक मिनट, लेट मी, सॉरी। दिस इज ऑथर्स कीवर्ड करोगे आप यहाँ पे, दिस इज थीमेटिक एवोल्यूशन, और यहाँ पर नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट्स लिया था मैंने, यहाँ पर 2 और 3। दिस इज व्हाट आई हैव डन। और तो कहीं पर लिया ही नहीं मैंने, यहाँ पर इसको फिर क्लिक किया, सो दिस इज द डायग्राम दैट हैज कम। Anything else? Yes, ma'am. One thing more, I in few of the papers I came across the term page rank analysis. So I wish to know what is page rank and which software. So many things actually, वही मैंने आपको बोला अभी। अदिति, अगर मतलब मैं और आप आराम से बैठ के करेंगे, है ना, जो भी आपकी और भी प्रॉब्लम्स है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अभी जो मैंने चीजें बताई है, एक बार रिकैप करिए उसे, एक बार थोड़ा सा, किसी को इसी में अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको बाद में चीजों को आपकी हैंडल कर लूंगी, है ना? मुझे लगता है यू हैव ऑलरेडी डन दिस सॉफ्टवेयर, सो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और मैं एडवांस जो भी होगा हम इसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है अदिति? या मैं अभी आपको इसके बाद 8:30 लेट इट गो एंड लेट मी ask you can take the time and we can handle the queries. No issues with me. Yeah.
Can we And get your contact details, Shalini ma'am? मैम इसके ऊपर जो SLR वाला व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर है डिटेल्स मेरी. Okay. Thank you so much. मेरा नाम भी मेंशन्ड है इसमें ना. Okay. Yes, yes, it is there. So you can always connect with me. और कोई भी एडवांस भी आपको है तो क्वेरीज हैं तो वो हम उसमें करके कर सकते हैं. देयर इज नो इश्यूज विद दैट, राइट. मेरा इसमें अब आपको दिख जाएगा शालिनी अग्रवाल लिखा हुआ है इसमें ना. अगर आप नंबर्स के ऊपर जाओगे तो इट विल बी देयर, नेम मेंशन्ड है शालिनी अग्रवाल, राइट. Only we can see the numbers. I can't see your name. That is the reason why I. So let me tell you my number 9466 Okay. 34544. Okay. चैट बॉक्स में भी लिख देते हैं एक मिनट. Thank you so much. या मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में भी, राइट. Okay. Yes, yes. Anything else? Anything else? Any other question? Bholanath sir? Yes, ma'am. Can we close down, sir? Yes, ma'am. Yes.